So we'll go from the latest to earliest. मतलब अभी सबसे लेटेस्ट हम लोग देखें, उसके पीछे एक साल हम लोग चलते रहेंगे. अगर आप यहाँ पर मैंने क्या किया है, what I have done, this is the daily chart. You will find this daily in every slide. This is the daily chart and this is the 15-minute chart here, right? So in 2022, before budget, market was rallying down, and in the up movement, market there was a budget announcement, and in this market actually closed positive. Right, market came down, but market again rallied up and closed positive. Okay, so there was a what I can say, down move in the market before the budget, and after that market gave a positive close. Okay, and if you see it in 15-minute chart, intraday moment, you can see market is quite for some time in the earlier in the first half, market is almost sideways, then market was volatile, reacting to budget. Okay, in 2021 market was in downtrend, and you have seen a tremendous rally in 2021's budget move. Okay, so you might be hearing some children sound, so they are playing outside, so don't get distracted with to that. So यहाँ पर मार्केट में डाउनवर्ड्स मोमेंटम था, एंड उसके बाद मार्केट में एक अपसाइड मोमेंटम आया. ठीक है, एंड इन दिस ऑल्सो यू कैन सी फॉर सम टाइम मार्केट वाज साइडवेज, एंड देन मार्केट पिक्ड अप अ ट्रेंड एंड स्टेड इन दैट पर्टिकुलर ट्रेंड ओनली. ठीक है, तो ये देख के आई कैन अंडरस्टैंड द बजट वाज रियली गुड ऑफ 2021, राइट. कमिंग टू दी जस्ट अ सेकंड, नाउ कमिंग टू दी 2020 का बजट, राइट. Okay, 2020 का बजट, market was again in a downtrend, but market opened a huge gap down and a close was positive. It was not a we can't say कि ये नहीं कह सकते कि वो market में positive close हुआ, but if you see it from previous day close, it was a negative close, but intraday it was a positive close. Market was sideways for whole day, right? In 2029, again, if you see the previous trend, market was down and market gave a positive close, right? And in this also you can see the market is sideways for first half and becoming volatile in the second half. Okay. In 2018, market was in uptrend and market gave a negative close, right? And in this also you can see market is sort of sideways, and after second half market again went volatile. Okay, so basically seeing these 5 scenarios, I can say that how market is reacted ki was in the, if the previous trend is downside, market moved up in the budget. Okay, you can see it in everywhere. And when the previous trend is upside, the budget day was a negative day, like not a very negative day, but still the closing was negative and the market was volatile. But you can see market is volatile in most of the budgets. Like in this also you can see the market is volatile, very much volatile, right? In this also market is volatile. Here market was not quite well, market was very sideways. Here market was trending, and here again market was volatile. So out of 5, 3 times market was volatile. Let me write it down. So out of 5 times, 3 times markets were volatile, 1 time market was trending, and 1 time market was sideways. So the probability of being volatile is more here, right? And we know that budget days and results day are always volatile days, right? Again, if you can notice something, I have highlighted this also. Because in the first half, you can see market is going sideways. In most of the cases, like in every cases, you will see market is sideways on the first half. Market is sideways, like somewhat volatile. Market is again sideways. Market is again sideways. So this is also understandable that market is sideways most of the time in the first half.
the volatility gets introduced in the market after the budget has been. So how this happens, right? So from around, let's say budget is starting at 10 or 9, some, like, I don't know the exact time, but if budget is starting around 10 or 9, budget gets completed around 12 or 1, right? So in this 3 to 4 hour window, market is completely sideways, because market is trying to figure out how the budget is. Market can sense कि was maybe budget is not good, right? But still some budget, like some news is remaining. Market में people are realizing, like, let's say it's 11 o'clock, right? Till now budget has been not good, okay? But still there is 2 hours of commentary left, so market is sideways. We have not understood if the budget is good or bad, so market is sideways. And after the budget is completed, market reacts to that budget, and we can see a volatile movement. It can be up, it can be down. ओके तो ये तो समझ में आ गया कि बॉस मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज रहता है और सेकंड हाफ में मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, ठीक है? ये हमें समझ में आ चुका है अभी, ठीक है? तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम वो डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि अभी क्या लग रहा है मार्केट, ठीक है? ये सो वी डू अ डेली मार्केट एनालिसिस शो, उनको लाइक उस शो का नाम ही है क्या लग रहा है मार्केट, प्लस इज अ कॉमन लिंगो, मतलब जब भी आप अपने दोस्त से बात करेंगे कि बोले बस क्या लग रहा है मार्केट, ठीक है? तो ये उस लिंगो को मैंने यहाँ पर डाला, ठीक है? तो क्या लाइक वील सी कि अभी मार्केट इस टाइम पे हमें कैसा दिखाई दे रहा है. सो आई गो टू दिस अपस्टॉक्स का प्लेटफॉर्म. यहाँ पर मुझे ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दिखाई दे रहा है, राइट? तो एक चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मार्केट काफी टाइम से अभी प्रीवियसली, अगर मैं लंबा टाइम का ट्रेंड भी देखूं तो यहाँ से मार्केट में एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, फिर मार्केट एक साइडवेज मोमेंटम में रहा, उसके बाद मार्केट में एक ब्रेक आया है, ठीक है? तो दिस सिचुएशन as per our previous like 5 years budget का analysis, we can say कि बस मार्केट डाउन ट्रेंड में है. तो यहाँ पर एक अपसाइड, एक ग्रीन कैंडल मुझे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है? अब ये ग्रीन कैंडल कितना बड़ा होगा या एक छोटा सा ही ग्रीन कैंडल होगा, वो हमें नहीं पता, राइट? वी डोंट नो कि इफ दिस ग्रीन कैंडल इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज, वेरी स्मॉल, और ये भी हो सकता है. देखिए कुछ भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि वी आर जस्ट हम लोग क्या एनालिसिस करते हैं मार्केट को, एंड वी डिफाइन अ प्रोबेबिलिटी, बिकॉज एज पर प्रोबेबिलिटी वी थिंक मार्केट कैन बी इन पॉजिटिव, राइट? बट इट्स नॉट कंप्लीटली श्योर कि वो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ओके? सो आई टेल यू कि हमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, ठीक है? तो हमारा जो फर्स्ट पीस ऑफ पजल है, जब भी हम मार्केट को मतलब whenever we do a daily market analysis show, हम 3 डेटा पॉइंट्स को हमेशा देखते हैं, ठीक है? तो पहला पीस ऑफ पजल है चार्ट, ठीक है? चार्ट्स किस तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं. दूसरा पीस ऑफ पजल है ओपन इंटरेस्ट, एंड तीसरा पीस ऑफ पजल है FII डेटा, ठीक है? सो चार्ट्स में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था, अभी मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? परंतु देखिए यहाँ पर 2 चीजें हो सकती हैं. एज पर प्राइस एक्शन व्हाट शुड बी द केस, कि देखिए अब यहाँ से देखेंगे मार्केट को, तो यहाँ से मार्केट में एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया, ठीक है? मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश करी, फिर मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रहा, और फिर मार्केट में एक इस तरह का मोमेंटम आया, ठीक है? सो दिस सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन विच इज कॉल्ड डबल टॉप, ठीक है? यहाँ पर आपको 2 टॉप दिखाई दे रहे हैं, ये और ये, टॉप नंबर 1, टॉप नंबर 2. तो इसे डबल टॉप पैटर्न कहते हैं, एंड ये पैटर्न मार्केट के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है, मतलब ज्यादा भी नहीं कहूंगा मैं कि मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट इसके बाद क्या है ना कि एक बेयरिश प्राइस एक्शन मार्केट में स्टैब्लिश हो गया, और वो किस तरह से हुआ कि मार्केट अपसाइड पर तो गया, ठीक है? एक हाई बनाया, फिर एक मार्केट ने लो बनाया, अब जो नेक्स्ट हाई बनाया ये पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ये वाला हाई, राइट? उसके बाद मार्केट ने इस लो से, ये जो लो मार्केट ने बनाया था उसके नीचे एक नया लो बना दिया, ठीक है? तो बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन कि बॉस जब भी मार्केट एक हाई, ये लोअर हाई, राइट? ये लो, ये लोअर लो, ठीक है? जब भी इस चीज में है मार्केट लोअर हाईज या लोअर लोज बना रहा है, तो मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड, वी से कि उस मार्केट में एक बेयरिश ट्रेंड है, राइट? तो यहाँ पर एक बेयरिश ट्रेंड हमें समझ में आ रहा है.
अब यहाँ से हमें रिकवरी दिखाई देगी नहीं देगी, बिकॉज आइडियली एज पर प्राइस एक्शन क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर आपको ये सपोर्ट दिखाई दे रहा है विच इज 17,800। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 17,800 आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा कि यहाँ से मार्केट एक अपसाइड पर गया, फिर से मार्केट अपसाइड पर गया, राइट। तो यहाँ पर आपको जब भी मार्केट इसके पास जाता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, राइट। बेसिक प्राइस एक्शन की जो सपोर्ट है, सपोर्ट टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंसेस टर्न्स इनटू सपोर्ट्स, राइट। तो हियर वी हैव सीन द सपोर्ट्स एंड नाउ दिस सपोर्ट कैन बी अ रेजिस्टेंस, बट इट्स अ आइडियल केस, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूज ड्रिवन डे, ठीक है। न्यूज ड्रिवन डे में यही दिक्कत हो जाती है कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस, जो भी टेक्निकल एनालिसिस आप करते हैं, ठीक है, वो मार्केट कभी भी डिस्काउंट कर सकता है, मतलब उसे गलत साबित कर सकता है। मार्केट कैन डिस्काउंट एनी टेक्निकल एनालिसिस ऑन न्यूज ड्रिवन डे, ठीक है। सो बेसिकली ओके, एक और किस्सा सुनाता हूं आपको कि मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक वी ऑल आर ट्रेडर्स, राइट, एंड इन एज नॉर्मल जनता सेज कि ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग, राइट। सो वी गिव सम पॉइंट्स कि बॉस व्हाई ट्रेडिंग इज नॉट अ गैम्बलिंग, ठीक है। सो वी से कि बॉस नहीं ऐसा गैम्बलिंग नहीं है। इन गैम्बलिंग और इन लॉटरी वी जस्ट बाय एनी लॉटरी टिकट और वी जस्ट गो बाय एनीथिंग blindly, right? But here in trading we do a technical analysis, we do chart analysis, right? We do OI analysis, we do FIA DIA data analysis. Based on these several data points we take a trade, okay? Based on these particular data points we take a trade, and since we have done this much analysis, तो इसलिए ये गैम्बलिंग नहीं है, ये एक सोचा समझा डिसीजन है जो मैंने लिया है, राइट। दिस इज अ वेल थॉट डिसीजन आई हैव टेकन, राइट। बट इन न्यूज ड्रिवन डेज द टेक्निकल एनालिसिस एंड द चार्ट एनालिसिस दे कैन इजीली बी डिस्काउंटेड बाय मार्केट, ठीक है। वो मार्केट के जरिए बहुत आसानी से गलत साबित कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको लगेगा अरे यार यहाँ से तो सपोर्ट लेना चाहिए था यार, यहाँ से मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए था, यहाँ से क्यों नहीं लिया सपोर्ट, और आपको लगे यहाँ से रेजिस्टेंस था यार, ये रेजिस्टेंस क्यों नहीं लिया मार्केट ने, ठीक है। आप सोचते रह जाएंगे और मार्केट उसको तोड़ के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप न्यूज वाले दिन ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे पहला कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करिए, रिस्क अपना मैनेज करके ट्रेड करिए, ठीक है। चलिए अब डिस्कशन हम ये एंड में भी करना है तो हम इस पे ज्यादा भी बात नहीं करेंगे, विल डू इट इन एंड ऑल्सो, ठीक है। तो इस छोटे टाइम फ्रेम पे भी चलते हैं हम लोग कि अभी मार्केट 15 मिनट्स पे हमें क्या सिचुएशन बना के दे रहा है। तो यहाँ पर तो मुझे देख के ऐसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट अभी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बट एज यू कैन सी, एज यू हैव लाइक एज आई हैव सेड कि बस मार्केट इफ मार्केट गोज अप इट विल हिट रेजिस्टेंसेस, राइट। ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, ये यहाँ पर आने के बाद नियर 17,800 मार्केट विल हिट रेजिस्टेंस, राइट। तो एक हमारे लिए सिग्नल क्या होगा कि अगर मार्केट 17,800 के ऊपर सस्टेन कर रहा है देन वी कैन सी अ ह्यूज रैली, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रही बात अपसाइड की, बट लेट्स से मार्केट हमारा जो हमने जो 5 साल का एनालिसिस किया है उसको गलत साबित करता हुआ नीचे साइड पर जाने का ट्राई करता है, ठीक है। देन मार्केट विल एस्टैब्लिश अ प्राइस एक्शन लाइक दिस, ठीक है। तो हमें मार्केट में एंट्री कब करना है, जब मार्केट 17,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो जाती है ना, ये आप देख रहे हैं ये कैंडल, मैं आर्ली चार्ट पर हूं, आई एम ऑन आर्ली चार्ट, राइट। सो यू कैन सी दिस कैंडल, राइट, it has broken upside also, it has broken the downside also, ठीक है, but it has closed in between, ठीक है। सी द ब्यूटी ऑफ इवेंट्स, राइट। तो इवेंट मतलब बजट वाले दिन भी आपको ऐसे कुछ मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, सो द स्टॉप लॉस विल बी ह्यूज, ठीक है। तो सिंपल सा आप हमेशा जब भी आप ट्रेड लें, not even like not in events, not in budget, in general trading also, always follow this particular formula, like you guys might also know this, but position sizing के लिए simple सा formula होता है कि boss my stop loss is into my stop loss into the quantity size, ठीक है। so position sizing का formula मतलब ये total loss मेरा होगा ये,
ठीक है, दिस इज माई टोटल लॉस, राइट? सो इफ माई स्टॉप लॉस इज ह्यूज, बिकॉज मेरा टोटल लॉस तो मुझे वही रखना है, राइट? आई कैन लूज ओनली 5,000 रुपीज, और आई कैन लूज ओनली 10,000 रुपीज, और आई कैन लूज ओनली 50,000, वट एवर योर बजट इज, योर बजट, राइट? सो 5,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, तो दिस लॉस इज सेम. बट इफ because of market volatility, if my SL is going up, my quantity size should go down to maintain this particular SL. ठीक है, तो ये SL बनाए रखने के लिए अगर मार्केट में आपके SL मतलब ये पर्टिकुलर टोटल लॉस बनाए रखने के लिए अगर मार्केट में आपके SL बड़े हो रहे हैं तो आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी बॉस. ठीक है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे तो यू विल end up in a huge loss, because market volatility की वजह से आपको एक बहुत बड़ा लॉस दिखाई देगा. Then you will book that particular loss and market will go in your direction later, right? You have exited the trade because आपको ये लगा कि मेरा ये इतना बड़ा SL मैं नहीं रख सकता हूँ, मैं से नहीं झिलेगा, इसलिए आपने वो एग्जिट ले लिया ट्रेड से. बट वहीं अगर आपने क्वांटिटी कम रखी होती तो जो अमाउंट आपको यहाँ पर दिख रहा है वो डिवाइडेड बाय मे बी 10 होता, तो आपको इजीली डाइजेस्टेबल होता कि हाँ ठीक है, इतना लॉस चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, विच वॉज अंडर योर दिस पर्टिकुलर टोटल लॉस का बजट. ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर एक चीज ये बताई है कि आपको पहला तो ये चीज ध्यान में रखना है कि 17,800 is a strong resistance for market, and 17,500 to 550, 17,500 to 550, not 550, 450 is a strong support for market. ठीक है, अब अगर मार्केट इसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर रह जाता है तो आपको कोई भी बड़ा मूवमेंट मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है और मार्केट अपसाइड मूव करता है तो आपको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है. बिकॉज मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ. ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा. अगर मैं सेंसिबल पर मैं मतलब सेंसिबल प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ तो यहाँ पर आप अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं. ठीक है, आप अपनी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर सकते हैं. ठीक है, और आप ओपन इंटरेस्ट डेटा वगैरह को भी देख सकते हैं. तो अगर आप अपने आप स्टॉक के अकाउंट से यहाँ पर लॉग इन करते हैं तो आपको 1 मंथ का फ्री प्रो प्लान भी यहाँ पर दिया जा रहा है. ठीक है, तो अगर आप स्टॉक के जो लिंक आपको दिया गया है इस वेबिनार में या उससे पहले भी आपको प्रमोशनल ऑफर जो चल रहा था उसमें उससे लॉग इन करते हैं तो आपको 1 मंथ का प्रो प्लान मिलता है जिसमें आपके सब कुछ इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, क्या करता है. तो बेसिक इंट्रोडक्शन में एक दे देता हूँ छोटा सा कि ट्रेड सेक्शन में आपको कुछ चीजें मिलेंगी जिनसे जैसे कि इजी ऑप्शंस है, स्ट्रैटेजी बिल्डर है जहां पर ये सबसे पॉपुलर फीचर है, लिखा हुआ भी है इसलिए. ठीक है, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फीचर कि बस यहाँ से आप अपनी स्ट्रैटेजीज को एनालाइज कर सकते हैं. हम देखेंगे कैसे, वील सी हाउ यू कैन एनालाइज योर स्ट्रैटेजीज. एंड इन एनालाइज सेक्शन यू कैन सी ऑप्शन चेन, you can see open interest data, multi-strike OI, multi-straddle triangle chart. So if you are an option trader, like hardcore option trader, so this platform is must for you, I guess. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन दिखाई देती है, राइट? तो ऑप्शन चेन पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि 18,000 पर ऑन 18,000 जस्ट 18,000 पर आपको बहुत बड़ा कॉल OI दिखाई दे रहा है, right? And we have shown call OI in the red color and the put OI in the green color, right? So this is the option chain same as NSE but slightly intuitive कि बस आपको देख के पता चलेगा. you can just see and analyze कि बस हाँ यहाँ पर एक अच्छा OI build-up है, right? तो why in red? Because call OI is generally considered as a resistance. I tell you why. Because जो ऑप्शन बेच रहा होता है, मतलब जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट पे कोई ट्रेड होता है तो somebody is selling an option, somebody is buying an option, right? If somebody is selling an option, he should have like a good amount of margin. ठीक है, and the person who is buying option, उसको कोई मार्जिन की जरूरत नहीं है. There is no need for margin for him. He just need to pay the premium, paying 5,000, 10,000. But to sell an option, you need around 1.25 lakhs.
right? If you are not hedging and getting the margin benefit. But if someone has sold so many call options, it means they think कि बॉस मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगा, right? And we generally assume that इतना सारा पैसा, this much money is only with the institutions and banks and the बड़े trading firms, right? So if they have sold the option, they might have researched about it, they might know something which we don't know, ठीक है? उनके पास कुछ informations होगी जो हमारे पास बहुत लेट पहुंचती है, ठीक है? उनको काफी कुछ पता होगा जो हमें नहीं पता है, right? That's why they have bet their large amount on this particular thing, because as a retailer I need only 5,000 rupees, but person who is selling option, he needs around 1.25 lakh rupees. Also his loss is unlimited. See the risk कि जो ऑप्शन सेल कर रहा है उसका लॉस अनलिमिटेड है, मेरा लॉस लिमिटेड है बॉस, मेरे को 5,000 जाएंगे अपन खुश है, ठीक है? बट जिस बंदे का 1.5 लाख रुपया लगा हुआ है उसका लॉस भी अनलिमिटेड है, उसको कितना भी लॉस हो सकता है, ठीक है? तो उसे बहुत सोच समझ के पैसा लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो इस वजह से अगर कोई कॉल सेल कर रहा है तो उसका नेगेटिव व्यू है, इसलिए वजह हम बोलते हैं कि बॉस ये जो स्ट्राइक है वो इस स्ट्राइक के ऊपर बहुत मुश्किल से जाने देगा मार्केट को, ठीक है? बिकॉज these big numbers like 94 lakh contracts, ठीक है? 94 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको 1 लाख से और इंटू कर लीजिए, उतना पैसा अगर किसी ने लगाया है तो वो इतनी इजीली मार्केट में इस पर्टिकुलर लेवल को पार नहीं होने देगा। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट यही है, 18,000 का कॉल, उसके बाद 18,200 का कॉल है, ठीक है? सबसे बड़ा पुट साइड पर, यानी जहां सपोर्ट होना चाहिए मार्केट में वहां पर बड़े हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर नंबर्स आपको 30s की रेंज में दिखाई दे रहे हैं, 30 और 40 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर आपको अराउंड 1 लाख का 60, 50 इतने बड़े बड़े नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 40 के अराउंड आपको नंबर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो एक बात तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि ऑप्शन चेन नेगेटिव बता रहा है, ठीक है? ऑप्शन चेन काफी कुछ नेगेटिव इंडिकेशन बता रहा है हमको, ठीक है? चार्ट्स में हमने देखा कि यहाँ पर नेगेटिव बिहेवियर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, बिकॉज मार्केट अपसाइड पर जाएगा तो रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है? यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि बॉस मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आया, मार्केट अपसाइड मूव किया तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, ठीक है? यहां से मार्केट फिर से एक डाउनवर्ड्स मोमेंटम दे सकता है, ठीक है? ये तो बात रही चार्ट्स की। बात रही ऑप्शन चेन की, तो यहां पर भी थोड़ी नेगेटिवनेस दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं FII DIA डेटा, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं मार्केट के बारे में, ठीक है? व्हाट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग अबाउट द मार्केट राइट नाउ। सो इफ यू कैन सी द नेट पोजीशंस as of Monday, so NSE updates data around 7:30 और 8, तो यहाँ पर आपको और देखने को मिल जाएगा जब नेक्स्ट एक और बार आएगी। तो बट अगर मैं कल तक का डेटा एनालाइज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये जो रेड में है, ठीक है, ये उनका बता रहा है कि उन्होंने नेट कितना पुट बाय किया है, ठीक है? और ये जो ग्रीन बता रहा है, मतलब सिंपल सा यही है कि जो भी यहाँ पे चीज ग्रीन में है, दिस इज अ सपोर्ट फॉर मार्केट, ठीक है? एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस फॉर मार्केट। बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है मैं सब कुछ बता पाऊँ। तो ग्रीन बार कम दिखाई दे रही है, मतलब मार्केट में कम सपोर्ट्स हैं, रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है? वही अगर आप इंडेक्स फ्यूचर की एक्टिविटी देखेंगे तो पिछले कुछ समय से इंडेक्स फ्यूचर में FIIs का फ्यूचर एक्टिविटी दिखा रहा है कि 30 जैन को मार्केट में सेलिंग हुआ है बहुत बड़ा, 27 जैन को भी मार्केट में अच्छा खासा 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ है, 25 के आसपास भी मार्केट में 3,000 करोड़ के आसपास सेलिंग हुआ है। तो यहाँ पर नेट FII जो OI है वो भी नेगेटिव में चल रहा है, मतलब नेट FII शॉर्ट है अभी, ठीक है? आपको भी पता है कि मेरे पास जो पेरेंट बहुत गर्म होकर भी आता था वो चुपचाप ठंडा होता तो ऐसे जमा करा के चला जाता था। लास्ट दिन आप याद करो कितनी 100 से ऊपर करके आए थे ना इसे गेट पे, जब छुट्टी लेट हो गई।
तो मैं कुछ बंदूक पर राइफल लेके गया था। ये कि उस टाइम जब मैं जा रहा था तब मैंने कहा कि सर मुझे तो पता नहीं था, लेकिन एक ऑफर थी, मैंने कहा तो बोले कि कल को गौरव सर अगर वहां जाकर कुछ बोलते हैं तो आप किसको फेवर करेंगी? जाहिर सी बात है बेटे को। चुप हो गई। आज यहाँ भी ऐसा इंडिपेंडेंट को बिल्कुल मालिक को कोई मतलब ही नहीं। सर मैं बता दूं, वो वहाँ रह के कुछ नहीं कर रही है। चलिए गाइस, आई एम रियली सॉरी। चलो फिर से हम लोग तो जहां तक हमने डिस्कशन किया था कि हाँ, तो जहां तक हमने डिस्कशन किया था कि हमारे जो 3 पीसेस हैं पजल के, सबसे पहला चार्ट्स। यहाँ पर चार्ट्स में हमको ये दिखाई दे रहा है कि वो मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहा है अभी कुछ समय से, कि मार्केट नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एक अपसाइड मोमेंटम आया है, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट फिर से यहाँ पर इस तरह से नीचे साइड पर जा सकता है, ठीक है। और अगर मार्केट में मान लीजिए, और हमने जो ऑप्शन चेन एनालिसिस किया था, ऑप्शन चेन में हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर रेजिस्टेंसेस ज्यादा हैं, सपोर्ट्स उतने अच्छे नहीं, ठीक है। एफआईआई डेटा भी हमें दिखा रहा है कि कुछ दिन से एफआईआई नेगेटिव, मतलब काफी मार्केट में नेगेटिव है, शॉर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं लॉन्ग की बजाय, ठीक है। तो ये तो हमारे 3 पीसेस ऑफ पजल हो गए बॉस की। अगर ये तीनों की हम बात सुने तो यहाँ पर मुझे ये समझ में आ रहा है, मैं अपना फिर से पढ़ लेता हूँ स्लाइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ट्स में, अच्छा एक बार हम मंथली वीकली भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली मार्केट काफी नेगेटिव दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने आपको बताया अभी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट भी अगर आप देखते हैं तो वीकली चार्ट हमें ये समझ में आता है कि मार्केट डाउनवर्ड्स गया, ठीक है। निफ्टी के, हम निफ्टी के चार्ट पर हैं हम लोग, निफ्टी वीकली पे साइडवेज रहा मार्केट, फिर से मार्केट में एक ब्रेकडाउन आपको यहाँ पर दिखाई दिया कि मार्केट निचले स्तर पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अगर हम मंथली चार्ट पर देखते हैं तो मंथली चार्ट पर आपको पिछले महीने के लिए यहां इस पर्टिकुलर पैटर्न को बेरिश एनगल्फिंग कहा जाता है, ठीक है। बेरिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक कैंडल है, ठीक है, उसके नेक्स्ट वाली कैंडल ने उसको ऑलमोस्ट कवर कर लिया है, ठीक है। इस वाले कैंडल का जो लो है वो पिछले वाली लो से नीचे है, इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल के हाई के ऊपर है। और अगर ये कैंडल रेड होती है तो इसे हम बेरिश एनगल्फिंग कहते हैं, और अगर ये कैंडल अगर ग्रीन है, ठीक है, तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग कहेंगे, ठीक है। तो आपको मंथली चार्ट्स पर ये दिखाई देगा कि वो जो नवंबर दिसंबर का जो ये कैंडल है, जो दिसंबर का कैंडल है, ये एक बेरिश एनगल्फिंग बना रहा है, और यहां पर हमें कंफर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है बेरिश एनगल्फिंग। कंफर्मेशन मतलब मैं हमेशा कहता हूं अपने एनालिसिस में कि बॉस पैटर्न के 2 हिस्से होते हैं, एक होता है फॉर्मेशन जहां पर पैटर्न बन रहा होता है, दूसरा होता है कंफर्मेशन, ठीक है, जहां पर पैटर्न कंफर्म होता है। तो कंफर्म किस तरह से होगा? जब पैटर्न अपने प्रीवियस पैटर्न के लो या उसके हाई के नीचे, हाई के ऊपर ट्रेड करने लगता है। तो यहाँ पर ये बेरिश पैटर्न था, इसके लो के नीचे मार्केट क्लोजिंग भी आप देना शुरू कर चुका है, ठीक है। आज की जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे हो चुकी है, अब कल जो है वो कल नया मंथ शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वीकली, मंथली और डेली चार्ट तीनों ही मुझे ये बता रहे हैं कि मार्केट में बेरिशनेस है अभी तो,
ठीक है, मार्केट बेरिश दिखाई दे रहा है। ओपन इंटरेस्ट मुझे भी सेम यही इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है, और एफआई डेटा भी मुझे बेरिश इंडिकेशन ही दे रहा है, ठीक है। तो अभी